Alright class, so now we are going to study about forces acting in covalent molecules. Okay, the first one is van der Waals forces. Okay, alright, so ये जो van der Waals forces होते हैं they act upon the non-polar covalent compound. Like यहाँ पे हमने example पे किया है मीथेन molecule का. Okay, so it is the forces of attraction between the nuclei of one covalent molecule and the electrons of the another molecule, and the forces, or you can say the forces of repulsion between the electron of adjacent molecule is known as van der Waals forces. Okay, and they are very weak force. All right, स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट फोर्स इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं. एंड ये कैरेक्टरिस्टिक थी नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की, वेयर एज दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ polar covalent molecules. As we know, in polar covalent molecules the atoms will they developed partial charges over them. Like अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल पिक किया है तो हाइड्रोजन एटम जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं, वेयर एज ऑक्सीजन विल बियर अ नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ओके, सो जो भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इन बिटवीन जो भी force of attraction होता है, that force of attraction is known as hydrogen bond or intermolecular forces. Okay, so in polar covalent molecules comparatively stronger forces exist, okay, than van der Waals forces, and they are known as hydrogen bond or intermolecular forces. All right, it is believed that these forces are produced by the electrostatic force of attraction between positive pole of one molecule, okay, and negative pole of other molecule. all right, so basic difference क्या हो गया? van der Waals forces जो हैं they are acting between the nucleus of one molecule and the electron. okay, attraction they are the attraction force between the nuclei of one molecule's nucleus and electron, okay, and the electron of other molecule, and it is the repulsion between the electron of nearby molecules, and these are formed, okay, means van der Waals forces are formed in non-polar covalent molecules, whereas intermolecular forces or hydrogen bonds are developed in polar covalent मॉलिक्यूल्स. ओके, तो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, सेकेंड मॉलिक्यूल ये है, तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्शियल चार्ज के इन बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा दैट वन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड. ऑलराइट क्लास, सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में. उनका फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, वो सारे पॉइंट्स आप खुद से कवर अप करिएगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी. ऑलराइट class, so the next topic is coordinate covalency. okay, so this coordinate covalency they exhibited by the polar covalent compounds. तो जो भी polar covalent compounds होते हैं उनमें coordinate covalency होती है. ओके, रीज़न क्या है? आई थिंक इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू वन न्यू वर्ड दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन अमोनिया, इन वाटर, लाइक दिस. ओके, लाइक मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, जैसे अमोनिया, ओके, इसके आउटर मोशन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 5. तो 3 की तो वो शेयरिंग कर लेता है और उसे कितने मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ओनली 3. तो ये सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे शुड बी फ्री. और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो कि शेयरिंग में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेम थिंग गोज विद ऑक्सीजन ऑल्सो, कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6. ओके, सो ये 6 में कितना एड अप करेंगे तो 8 होगा? ओनली 2. सो दैट इज वाई इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वेयर एज इसके जो 2 पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के दे शुड बी
alone, okay, and known as lone pair of electrons, means they will not participate in any kind of bonding, okay. So then because they are polar covalent compounds, that is why they will develop some partial charges, like hydrogen will bear positive partial charge, nitrogen will bear partial negative charge, here oxygen will bear partial negative charge, and hydrogen are having partial positive charge. सो यहाँ पे एक न्यू टर्म मैंने ऐडअप किया था लास्ट क्लास में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मीन्स इन द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड लाइक अमोनिया, ओके, मॉलिक्यूल्स और वाटर, ओके। तो अगर अमोनिया की एग्जांपल पिक करें तो इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन एटम हैज़ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एटम, ओके। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम इन द मिडल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Similarly, in the water molecule, oxygen atoms, okay, has two pairs of electrons which are not shared by any other atom, okay. These unshared pairs of electrons around an atom in the middle of molecule of a polar covalent compound are known as lone pairs of electron. ठीक है, अब मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूँगी what is coordinate covalency. मतलब बिफोर दिस आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंसी या कोऑर्डिनेट वैलेंसी में क्या होता है, अ बॉन्ड बिटवीन एन आयन एंड द एटम ऑफ पोलर कोवेलेंट. मतलब कि ये जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है इसके बीच और एक दूसरे एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ओके, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी. ऑलराइट, सो फॉर दिस एग्जांपल लाइक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब भी इसको हम कंबाइन करते हैं एक हाइड्रोनियम आयन के साथ या फिर हाइड्रोजन आयन आप कह सकते हो, जो कि पॉजिटिव बेयर करेगा, मीन्स इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इस नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ओके. एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस होल मॉलिक्यूल, ओके, दिस होल मॉलिक्यूल विल बेयर a single positive charge, and this arrow is showing, okay, and this arrow shows coordinate covalent bond, okay. This arrow shows coordinate covalent bond. Sorry, by mistake मैंने lone pair of electrons यहाँ दिखा दिया. I have to show it here because arrow यहाँ पे मैंने बनाया था, so मुझे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये मुझे यहाँ साइड में दिखाना चाहिए था. मतलब ये जो एरो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए दिखाया जा रहा है कि हाइड्रोजन इज टेकिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स दिस H+ आयन इज टेकिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इसी तरह हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है ऑलराइट क्लास. सो यहाँ पे हमने पिक किया है एक वाटर मॉलिक्यूल को. एज आई टोल्ड यू इन वाटर मॉलिक्यूल, ओके, इन वाटर मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हियर. वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द H+ आयन, और जैसे H+ आयन इसको लेगा दिस होल मॉलिक्यूल विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज. मीन्स अर्लियर क्या था कि इस पे सब पे डेवलप थे चार्जेस, बट नाउ आफ्टर द coordinate covalency the whole molecule is bear a single charge, that is positive charge, and this arrow is showing the taking of lone pair of electron. so इस molecule को कैसे हम represent करेंगे H3O+, whereas ammonium ion को हम कैसे show करेंगे NH4+. ऑलराइट, एंड अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे लाइक अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, मीन्स कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल अगर अपने से लूज कर लेता है एक हाइड्रोजन एटम को, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोक्सिल आयन लाइक दिस, ओके. कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल से हम H+ आयन को रिमूव आउट करते हैं तो इस हाइड्रोजन आयन का जो इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी रिमेन विद द ऑक्सीजन ओनली. सो दैट इज वाई दिस OH विल बेयर अ नेगेटिव चार्ज, वेयर एज
H प्लस आयन विल बी रिमूव आउट। मीन्स वाटर को जब भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। ओके, और यही हाइड्रोनियम आयन जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। मीन्स कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, नाउ क्लास द नेक्स्ट थिंग, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये आपको खुद से पढ़ना है। इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी। ऑलराइट, टेक केयर।